petitioner is plaintiff before the London Trial Court filed the civil suit for declaration of title and permanent injunction because the respondent number 3 are intervening in the possession of the petitioner. Petitioner has obtained the right of title in the suit land by virtue of registered sale deed dated segregation have been allowed. He is holder of the sale deed. My lord, So he is the recorded owner. only in the revenue record में जो डिफेंडेंट नंबर 2 है प्लेंटिफ का ब्रदर, उन्होंने पटवारी से मिलकर एक फोर्ज एंट्री कराई रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम की. देयर इज नो एनी ट्रांजैक्शन एट ऑल में. लेकिन इन दोनों का कभी पोजीशन नहीं रहा. आप ही का रहा. हमारा रहा टिल नाउ है भी, वो हमने कंप्लेन में भी लिखा है. पोजीशन ही नहीं रहा. आप तो हमेशा बाहर रहे हैं नौकरी पर. नहीं. So subsequent sale deed which have executed by Krishna Kumar in favor of Dudani itself is null and void. जब उनको उस संपत्ति का कोई टाइटल नहीं है तो वो किसी को दूसरे को कैसे ट्रांसफर कर सकते. बट दैट हैड बीन रिवर्स बाय द लंदन लोअर अपीलेट कोर्ट बाय ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन. उनका केवल ये मानना है कि रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई इसलिए वो मालिक है और ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उनका पोजीशन हो सकता है. अच्छा, एक चीज इसमें और आई मिलोड कि उन्होंने ये कहा है कि हमने एक पारिवारिक व्यवस्था पत्र जो ओरल पार्टीशन था उसके आधार पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 का कहना था कि हमने अपनी रेवेन्यू एंट्री कराई. दिस मैटर पर्टेन्स टू द टेम्परेरी इंजंक्शन मिलोड. द पर्टेनिंग टू temporary injunction मिलोड. टेम्परेरी इंजंक्शन मिलोड. Petitioner is plaintiff before the London Trial Court filed the civil suit for declaration of title and permanent injunction because the respondent number 3 are intervening in the possession of the petitioner from the suit land. The temporary injunction application has been allowed by the order dated 2nd of April 2025 in Exer A2 Milord. Being agreed by that order, Milord, the respondent number 1 and 3 have preferred the miscellaneous appeal which has been allowed and trial court order have been reversed, Milord. The brief fact of this matter is that, Milord, the petitioner has obtained the right of title in the suit land by virtue of registered sale deed dated 2nd of June 1983, my lord. He is working as a teacher, my lord. Therefore, he is handed over the agriculture work of his brother, respondent number 2, Mr. Krishna Kumar, my lord. Because the adjoining land is his family. उसकी और भी वहाँ लैंड थी. और आपका assertion क्या है प्लेंट में, बताइए. Pardon, lord sir? प्लेंट में आपका केस क्या है? Case is that, my lord, the petitioner is title holder of the concerned land. The subsequent sale deed by ab initio and is still holding possession. On account of that ground, the 3912 application have been allowed. He is holder of the sale deed. My lord, but so he is the recorded owner. only in the revenue record, my lord. नहीं तो वही हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं. वो सेल डीड उसकी नल एंड वॉइड है क्या? हाँ, क्योंकि हमारा जो प्लेंटिफ है, दैट प्लेंटिफ इज द ट्रू ओनर ऑफ द कंसर्न लैंड. जो डिफेंडेंट नंबर 2 है प्लेंटिफ का ब्रदर, उन्होंने पटवारी से मिलकर एक फोर्ज एंट्री कराई रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम की. देयर इज नो एनी ट्रांजैक्शन एट ऑल, मिलोड. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेवेन्यू एंट्री he was sold out the land to the defendant respondent number 1 in the year of 2017 because the possession has not been handed over. Then respondent number 1 has further sold out such land to respondent number 3 in the month of July 2024. After that, she has intervening in the possession, peaceful possession of the petitioner because she belonged to the powerful family and political interference, my lord. Then petitioner have made a complaint before the authorities, police, subdivisional officer, but nothing have been done. Then no, your brother is, you are son of Sundar Lal. My lord. आपका ब्रदर है नंबर 2. मेरे ब्रदर नंबर 2 कृष्ण कुमार. इन्होंने किसको सेल कर दी? ये दुदानी को, दिलीप दुदानी को. दिलीप दुदानी ने प्रियंका को कर दी. प्रियंका को कर दी. लेकिन इन दोनों का कभी पोजीशन नहीं रहा. आप ही का रहा. हमारा रहा टिल नाउ है भी, वो हमने कंप्लेन में भी लिखा है. पोजीशन ही नहीं रहा. आप तो हमेशा बाहर रहे हैं नौकरी पर. नहीं लॉर्ड, लेकिन खुद का केस है कि आपके भाई आपकी जमीन को नहीं है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर वो काम करते थे. एज ए टाइटल, यदि सेपरेट सेल डीड से हमने कोई टाइटल अर्जित किया, किसी को बटाई पे दिया या किसी को इंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए दिया, तो उसका कोई सब्सटेंटिव राइट एज ए पोजीशन होल्डर तो होगा नहीं. And if any further revenue entries have done against the right of true owner, that is itself null and void, my lord. So subsequent sale deed which have executed by Krishna Kumar in favor of Dudani itself is null and void. जब उनको उस संपत्ति का कोई टाइटल नहीं है तो वो किसी को दूसरे को कैसे ट्रांसफर कर सकते. और पोजीशन नहीं मिला, इसी कारण दुदानी ने उस संपत्ति को प्रियंका को सेल आउट कर दिया. चूंकि वो लोकल के पावरफुल पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम पोजीशन ले लेंगे. 384 था, इस 345 था इस अराजी में, जिसका 2 एकड़ रकबा उन्होंने बेचा उनको.
और उस 2 एकड़ के रकबे में दुधानी ने कोई पोजीशन नहीं पाया। ये उनको लगा कि हम सफल नहीं होंगे तो किसी पावरफुल को बेच दिया। नाउ द स्पेसिफिक डेट हैव गिवन इन द सूट में लॉर्ड कि कब उन्होंने हमको डिस्टर्ब करना चालू किया। क्योंकि प्रियंका का जो म्यूटेशन एप्लीकेशन पेंडिंग था तब हमको जानकारी मिली। पिटिशनर से ने वहां इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी लगाया, लेकिन तहसीलदार का करना था कि ही इज ड्यूटी बाउंड टू म्यूटेट द नेम। आपको यदि कोई रेमेडी चाहिए आप सिविल सूट जाइए। देन month of September 2024 I have filed the civil suit. Then Priyanka has started the forcefully taking possession. हमने complaint made किया एग्जाम P7 से, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ then in the month of January 2025 I have moved the application under order 39 rule 190, which has been allowed by the learned trial court by regarding the well reasoned finding, my lord. But that had been reversed by the learned lower appellate court by on the basis of assumption. उनका केवल ये मानना है कि रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई इसलिए वो मालिक है और ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उनका पोजीशन है, जबकि विदाउट लीडिंग एविडेंस तो ये तो क्लेरिफाई नहीं होगा। और आई हैव स्पेसिफिकली टेकन द प्ली ऑन डे बाय डे, मिलॉर्ड। ये ट्रायल कोर्ट का देखेंगे एग्जर्ट P2 है मिलॉर्ड ऑर्डर, पैरा मिलॉर्ड इसका 15 देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 में ये उबंधित है कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए सक्षम है जिसका वह स्वामी हो या स्वामी के द्वारा प्राधिकृत हो। हस्तगत प्रकरण में विक्रय पत्र दिनांक स्वयं के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति वादी के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी एवं प्रकरण के इस स्तर पर यह दर्शित नहीं हो सका कि उक्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, जो उनके मध्य हुए मौखिक विभाजन में प्रतिवादी क्रमांक 2 को प्राप्त हुई। इसलिए प्रकरण के इस स्तर पर प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक स्वयं एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक स्वयं से क्रेतागण को कोई स्वतः अर्जित हुआ हो या उद्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज इसमें और आई मिलॉर्ड कि उन्होंने ये कहा है कि हमने एक पारिवारिक व्यवस्था पत्र जो ओरल पार्टीशन था उसके आधार पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 का कहना था कि हमने अपनी रेवेन्यू एंट्री कराई, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके संबंध में भी फाइंडिंग है। So my only submission is that, my lord, till the decision of the suit, the right of penalty may be protected because he is the true owner of the property and possession holder of the property, my lord. ठीक है, ठीक है, my lord. Grateful.